Health UK is a team of dedicated doctors who has a passion to provide you and your loved ones best possible care. You can enjoy this service while visiting www.doctorsforhealth.co.uk. Our team of dedicated doctors is available for your service and service of your loved ones. They can be anywhere in the world. If you have loved ones in Pakistan or anywhere in the world and you want for them the UK, Europe standard care, doctorsforhealth.co.uk can provide that service via our platform. Your loved ones only need to have laptop, desktop, tablet PC or mobile connected to internet. They can visit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. प्यारे रमज़ान टीवी के देखने वालों, आप सबको रमज़ान मुबारक। सबसे पहले जो आज का हमारा पहला प्रोग्राम हेल्थ के बारे में है, उसके तवस्सुस से और मैं अपनी डॉक्टर्स फॉर हेल्थ यूके की टीम के बिहाफ पर रमज़ान टीवी की टीम, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके स्कॉटलैंड और ग्लासगो की सरजमीन से इस टीवी चैनल का आगाज किया, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। उसके साथ साथ इसके डायरेक्टर और मैनेजमेंट के चीफ जो हमारे फैसल भाई हैं, उनकी कोशिशों को सराहते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इस अवाम की, जो स्कॉटलैंड के अवाम की दायरीना ख्वाहिश थी, उसको सच कर दिखाया। आज का प्रोग्राम डॉक्टर्स फॉर हेल्थ यूके की टीम की तरफ से मैं करने आया हूं और इस प्रोग्राम को हम इस तरह से लेके चलेंगे कि रमज़ान मुबारक में आपने दिन रात इबादत कर रहे हैं और जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनसे आप अपनी रूहानी जो तरबियत है वो कर रहे हैं। डॉक्टर्स फॉर हेल्थ यूके जो है वो एक हेल्थ और आपकी सेहत के बारे में बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। डॉक्टर्स फॉर हेल्थ की तरफ से हम आज बात करेंगे डायबिटीज पे। यूके भर में और दुनिया में अगर हम देखें तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी वो डायबिटीज की बीमारी में मुब्तला है। इसमें सबसे ज्यादा नंबर डायबिटीज का हमारी कम्युनिटी में है। तकरीबन 8% से ज्यादा लोग जो यूके में रहते हैं या फिर यूरोप में रहते हैं या मिडिल ईस्ट में, वो डायबिटीज की बीमारी में मुब्तला हैं। रमज़ान मुबारक में हर एक का दिल होता है कि हम भी रोजे रखें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक हम भी ये महीना गुजारें। और मुझे यकीन है मेरे वो अहबाब, वो मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन इस वक्त वो भी सोच रहे होंगे कि अगर हमें शुगर ना होती या डायबिटीज ना होती तो हम भी रोजे रखते
اور ہم بھی اس وقت کو ایک روحانی اور جسمانی تربیت میں سے گزار رہے ہوتے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین اور سننے والوں اور دیکھنے والوں، یہ ایک اہم بات پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ڈائیابٹیز ہمیں کس قسم کی ہے، ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے۔ یہ دو قسم کی جو شوگر ہوتی ہے اس کا علاج مختلف ہے، اور اس میں اگر ہم دوائی کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کروا لیں رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے تو ممکن ہے کہ آپ روزے رکھ سکیں۔ اگر آپ کو ٹائپ 2 ڈائیابٹیز ہے جو کہ 90% لوگوں کو ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور اسکاٹ لینڈ میں بھی یہی ریشو ہے، تو اس میں آپ اپنے ڈاکٹر صاحب جو ہیں، جو آپ کے جی پی ہیں، ان سے رابطہ کر کے اپنی دوائی جو تھی وہ ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائپ 2 ڈائیابٹیز میلائٹس پہلے ہوتی کیا ہے۔ آپ کا شوگر لیول اوپر چلا جاتا ہے، آپ کمزور فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ بیماری تھوڑی سی زیادہ تھی، پیشاب زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی سر درد شروع ہو گئی، کبھی کام میں دل نہیں لگ رہا، کبھی پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسے حالات میں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہیں آپ کو ڈائیابٹیز تو نہیں ہو گئی۔ ابھی آپ سوچیں گے کہ بھئی مجھے کیوں ڈائیابٹیز ہوگی؟ اگر آپ کی فیملی میں آپ کے ماں باپ میں سے کسی کو ہے، بہن بھائیوں کو ہے، تو آپ کا رسک زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈائیابٹیز کے اور رسک فیکٹرز ہیں وہ زیادہ ویٹ کا ہونا اور موٹاپے کا ہونا ہے۔ زیادہ ویٹ ہماری کمیونٹی میں چونکہ کھانے پینے کے جو ہیلدی یا صحت مند انداز ہیں اس کو ہم زیادہ فالو نہیں کرتے۔ ہم ایشین فوڈز بھی کھاتے ہیں اور پھر یہاں کی جنک فوڈ بھی انجوائے کرتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دو کلچر جن کا جو اچھا کھانے کا سٹائل نہیں تھا اس کو اپنا لیا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا جو کلچر جس سے ہم آئلی چیزیں یا گھی والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں کھانے کے عادی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے کلچر کی جو تلی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی پسند کرنا شروع کر دیا۔ درمیان میں سے سبزی بھی نکل گئی اور فروٹ بھی نکل گیا، سیلڈ کا تو نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو جب اس طرح کا ہمارا کھانے پینے کا انداز رہے گا تو اس صورت میں وزن بڑھتا جائے گا۔ جب وزن بڑھتا ہے تو جسم میں انسولین ہونے کے باوجود شوگر کم نہیں ہوتی۔ آپ یہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ تو بات عجیب کر دی آپ نے کہ انسولین بھی ہے اور پھر بھی ڈائیابٹیز ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ڈائیابٹیز جب انسولین زیادہ ہوگی اس وقت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ہمارے جسم میں فیٹ زیادہ ہوگی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم انسولین کو استعمال نہیں کر پاتا، اور انسولین جو ہے جس کو نارمل فنکشن کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور ہمارا پینکریاس جو ہماری باڈی میں ہمارے معدے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے وہ انسولین پروڈیوس کرتا رہتا ہے۔ ادھر اس کو میسج ملتا ہے کہ جی باڈی میں شوگر زیادہ ہے، اس لیے وہ انسولین بڑھا رہا ہے، اور ادھر دوسری طرف جو ہے فیٹ کی وجہ سے انسولین کام نہیں کر رہی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ انسولین بڑھ گئی ہے، انسولین ریزسٹنس آ گئی اور آپ کا شوگر لیول اوپر ہو گیا۔ اب اس انسولین کو استعمال کرنے کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں۔ جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے مسل جو ہیں وہ
इंसुलिन को यूज करना शुरू कर देंगे और ग्लूकोज जो है वो मसल में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी और ग्लूकोज का जो बढ़ना है, जो बॉडी में बढ़ना था, वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा दूसरा तरीका, जब आप अपना खुराक का बैलेंस कर देंगे, उसमें से सैलड ले आएंगे, हाई प्रोटीन कर देंगे, तली हुई नहीं, ऑयल कम कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि आपकी अपनी जो चर्बी है बॉडी में, जो इसे फैट कहते हैं हम, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। जैसे वो अपनी बॉडी में से चर्बी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद इंसुलिन का फंक्शन जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। तो ये तो दो सादा तरीके थे कि आपकी बॉडी इंसुलिन को कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूं कि जो टाइप 2 डायबिटीज है, वो प्री डायबिटिक्स, जिसको अभी ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो रही है, वो भी है, वो तो डेफिनेटली रिवर्स बैक कर सकते हैं। उसको पता कैसे चलेगा कि आपके डॉक्टर साहब जो हैं जीपी, वो आपके लिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करेंगे और फिर देखेंगे कि उसका लेवल कहां पे है। जैसे उनको नजर आया कि जी लेवल ज्यादा है, आजकल WHO में कहता है कि जी आप हीमोग्लोबिन A1C भी करें। हीमोग्लोबिन A1C एक ब्लड टेस्ट ही है जिसमें हम आपसे ब्लड लेते हैं, लैब में भेजते हैं, वो चेक करते हैं कि आपका लेवल कितना है और जैसे ही वो रिजल्ट वापस आता है तो हमें पता होता है कि ये लेवल नॉर्मल से नीचे है या ऊपर चला गया है। अगर नॉर्मल से नीचे है और बॉर्डर लाइन पे हमें पता होता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन A1C दोनों ही अब नॉर्मल हैं, तो ये पर्सन जो है ये प्री डायबिटिक है। तो उसमें लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो हाईली लाइकली है कि विद इन कपल ऑफ ईयर्स आप फुल ब्लोन डायबिटिक हो सकते हैं। तो ये एक वार्निंग साइन है। आपको अपने खाने की आदतें चेंज करना होंगी, आपको अपने आप को बदलना होगा, आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको सैलड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना होगा, ऑयली तली हुई चीजें कम करना पड़ेंगी, तो फिर आपको प्री डायबिटिक स्टेट से वापस आ सकते हैं। इसके बाद ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक कंफर्म हो चुके हैं लेकिन वो सिर्फ एक टैबलेट पे हैं, एक किस्म की दवाई पे हैं, वो दवाई कौन सी है? उसको हर बंदा जानता है, मेटफॉर्मिन है, कंपनी नेम ग्लूकोफेज है। अगर मेटफॉर्मिन आप खा रहे हैं और आपका वजन ज्यादा है तो आप सेफली रोजे रख सकते हैं। सिर्फ आपको यह फैसला करना है कि आपने दवाई, अगर आप 2 दफा दिन में खाते थे, वो 1 दफा चाहिए, ये आपके डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं। और इससे अगली स्टेज वाले मरीज वो हैं जिनको डायबिटीज है, वो मेटफॉर्मिन के साथ साथ और दवाइयां भी खा रहे हैं। वो थोड़ा सा मसला जो है ना, वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं उसके लिए डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल से आप कंफ्यूज हो सकते हैं और फिर गलत फैसला कर सकते हैं। इसलिए मैं ये आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर ये सूरत हाल में आप मुब्तला हैं तो प्लीज प्लीज अपने डॉक्टर साहब से मशवरा कीजिए और उनसे ये एडवाइस लीजिए कि आया आप रोजे रख सकते हैं कि नहीं। अगर रख सकते हैं तो दूसरी जो मेडिसिन हैं उनको मैं कैसे एडजस्ट करूं। इसके बाद वाले जो मरीज टाइप 2 के होते हैं वो मुमकिन है दवाई भी खा रहे हो, गोली भी ले रहे हो और साथ में इंसुलिन भी ले रहे हो। इनमें भी कुछ लोग जो होंगे वो जरूर रोजा रख सकते होंगे, लेकिन उन्हें अपने डॉक्टर साहब के साथ मशवरा करना पड़ेगा। इसके बाद वाले जो मरीज होंगे वो सिर्फ इंसुलिन पे होंगे और उनके लिए रोजा रखना इतना लंबा 18 घंटे का थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम ये एडवाइस करेंगे कि वो ये रिस्क ना लें।
इसके अलावा जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये हैं कि रमज़ान मुबारक में हमारे खाने की जो आदत हैं वो बैलेंस नहीं रहती। अब मैं मानता हूँ कि 18 घंटे के रोज़े के बाद आपका दिल चाहता है कि आप खूब खाएं अफ्तार पे, और फिर कोई एहतियात नहीं होती, बस यही होता है कि मैदे में डालते जाएं, कुछ उसको सोचने का मौका नहीं देते, उसको ये एहसास नहीं होने देते कि हमारा जो ज़रूरत थी वो पूरी हो चुकी है। तो इसके लिए मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर आप मुनासिब समझें तो पहले आप अफ्तार कर लें, उसके बाद मगरिब की नमाज अदा करें, फिर थोड़ा बहुत खाना जो है ना वो जैसे मैंने अर्ज किया है लेस कार्बोहाइड्रेट स्लाइटली मोर प्रोटीन का खाना जो है वो एंजॉय करें। इसके साथ साथ अफ्तार के वक़्त फ्रूट का इस्तेमाल करें, अपने पास जो भी वेजिटेबल्स हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये आपका अफ्तार हो गया। सहर का टाइम भी इतना दूर नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे दरमियान में है, 6 होंगे। तो इसमें भी आपने सुबह सहर के वक़्त फिर बैलेंस डाइट लें, और उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को अडॉप्ट करने के साथ इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में आप अपना वज़न करने में कामयाब हो जाएंगे। रोज़ा रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं नाज़रीन। इससे ना सिर्फ रूहानी तरबियत होती है, मेडिकल साइंस ने ये बहुत ज़्यादा एविडेंस के साथ प्रूव किया है कि फास्टिंग से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, आपको डायबिटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको और बहुत सारी बीमारियों से बचने का मौका मिल जाता है। इसके साथ आपका वज़न मुनासिब रहता है। इसलिए आज मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक़्त को, रमज़ानुल मुबारक को गनीमत जाने, इसको अल्लाह की ब्लेसिंग्स, रहमत जाने कि ये 29-30 दिन आपके लिए कंपल्सरी कर दिए गए ताकि आप स्पिरिचुअली एंड फिजिकली हेल्दी हो सकें। मैं बात कोरोना वायरस का भी करना चाहता था। कोरोना वायरस ने इस दुनिया को तहबाला कर दिया है। इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुआशी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे या जिस्मानी तौर पे इससे अफेक्ट नहीं हुआ। जाहिर है रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने वाले ये सोचते होंगे क्या रोज़ा रखने से हमारी इम्यूनिटी या डिफेंसेस इस मौजी बीमारी के खिलाफ कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे? डॉक्टर साहब रोज़ा रखता हूँ कमज़ोरी हो जाती है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे तो कोरोना का भी डर है, तो मैं क्या करूँ? तो मेरे भाई ये रोज़े जो हैं ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। जो इम्यून सिस्टम है आपका, आपके सेल्स जो हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो इम्यून सिस्टम बॉडी में हैं, जो डिफेंस सिस्टम बॉडी में हैं, वो स्ट्रोंगर हो जाते हैं क्योंकि आपके खाने की आदत चेंज हो गई हैं और आपका जो सिस्टम है स्टोमक वाला वो 18 घंटे रेस्ट में है, आपके किडनी जो है वो थोड़ा सा रेस्ट में है और आप एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में भी हैं। इन सारी चीज़ों से आपका डिफेंस सिस्टम बेहतर होता है। इस पे बहुत सारी जो है वो स्टडीज हो चुकी हैं। तो इसलिए कि जी मेरा तो डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, आप ये कहें जी मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, ये सही नहीं है। मैं रमज़ान टीवी के
दोस्तों की तरफ से जितने भी हमारे स्कॉटलैंड के रहने वाले, यूके के रहने वाले बहन भाई इस दुनिया से चले गए हैं या पूरी दुनिया से जो फौत शुदगान हैं उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से ये हम इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह इस बीमारी से इस दुनिया को पाक फरमा। या अल्लाह इस बीमारी ने दुनिया को तहबाला कर दिया। हम सब कमज़ोर इंसान हैं, हमारे में कोई हिम्मत नहीं है कि इस तरह की कैलेमिटीज़ को फेस कर सकें। तो अपने करम से रमज़ान की बरक़ात में से ये भी एक बरकत अता फरमा कि हम इस बीमारी से, इस दुनिया से ये बीमारी साफ हो जाए और ये दुनिया फिर अपनी दोबारा नॉर्मैलिटी में चली जाए। इसके साथ साथ मैं रमज़ान टीवी के सारे साथियों और आप सब से, अपने प्यारे प्यारे नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर्स फॉर हेल्थ की तरफ से ये आपकी हेल्थ के लिए प्रोग्राम जारी रहेगा इंशाअल्लाह और हम दोबारा मिलेंगे अगले प्रोग्राम के दौरान। अपने प्यारों का, गिरदोनवाह का सबका ख्याल रखिएगा। कोरोना ने हमें कुछ यूनाइट भी कर दिया है और हमें ये भी एहसास दिला दिया है कि हाइजीन कितनी अहम है और हमें इसको सिर्फ शिकस्त देने के लिए हाइजीन को बेहतर करना है। अपने हमसायों का और गिरदोनवाह के रहने वाले लोग जो कमज़ोर हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, मुझे और आपको उनको लुक आफ्टर करना है। मैं मरीज़ों को हॉस्पिटल में लुक आफ्टर करता हूँ और इंशाअल्लाह जो गिरदोनवाह में दोस्त अहबाब हैं उनको भी लुक आफ्टर करता रहूँगा और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी इस अमल को जारी रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबकी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।